एक मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रहा है, शायद हमारे किसी बच्चे का ही है। चलो उसमें। हेलो हेलो। So good afternoon, all of you. Meghna, let me know up to which topic we had discussed in the previous session. We had gone through the formula related to poison. ये खत्म हो चुका था। फिर we had already discussed some of the parameters related to poison. That what is the mean for the Poisson distribution? Mean for the Poisson distribution is lambda. Its variance is also even lambda. Its standard deviation is square root of lambda. To identify mode for the Poisson distribution, we are interested to know whether a lambda is integer or non-integer. If lambda is integer, if the lambda is integer, then that distribution will be bimodal. That means कि उस distribution के पास दो mode रहेंगे, एक lambda खुद और एक lambda minus one. And if that lambda is non-integer, then उसके पास that distribution will be unimodal. उसके पास एक ही mode रहेगा और वो mode क्या रहेगा? That greatest integer of that lambda. उस lambda का जो greatest integer आएगा, greatest integer function, that means integral part of that decimal value that will act as a mode. तो ये खत्म हो चुका था। सीआरवी सर ने आपने बताया था, रिकरेंसिलेशन भी आपने पढ़ लिया था। रिकरेंसिलेशन डिस्कस कर लिया था, इज इट ना मेघना? यस सर। फिर एग्जांपल 1 हो चुका था, एग्जांपल 2 भी हो चुका था शायद। ये कहाँ तक हुआ था? 1 2 तो या फिर 1 2 हो गया था और एक वर्ड प्रॉब्लम की थी हमने। ये भी हो गया था। ये वाला नहीं सर, ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था और इसको मैंने स्किप करके डायरेक्ट एग्जांपल 5 पे गया था शायद। ये किया था, हाँ ये हुआ था सर। ये हो गया था कि डिस्कस हाँ करना सर, बाकी? ये हो गया था। Good. So first, let's try to get this thing. So we will start our session from this particular. Let me check how many of you are attending this. 10, 12 students are there. 13 out of them, 3 are my screen. So slow. Hitesh Kriplani, can you unmute yourself, Hitesh? Hitesh, are you there? Hitesh, unmute yourself. Talk to me. Hitesh Kriplani, you just joined it. आपने अभी session join किया. Hitesh, am I audible to you? Yes, sir. Can you unmute yourself, Hitesh? Hitesh, can you unmute yourself? Are you in position to talk with me? Are you in position to interact with me? Sorry, sir, I can't. May I know the reason? फैमिली डिस्टर्बेंस। अरे तो मैं भी तो अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, घर पे हूँ। Oh, sorry, a relative has expired. Okay. It's okay, Hitesh, be here. Okay, now we are dealing with the Poisson distribution, and we are supposed to deal with this example number 4 right now. What is the instruction? If X is a Poisson variate, it is clearly mentioned that we are dealing with one of the Poisson variate. Okay, and the relation is provided like this: probability that X equals to 2 is equals to 9 times P of X equals to 4 plus 90 times X equals to 6. Okay, कल एक बात मैंने बोली थी, if I'm writing like that P of X equals to 2, or instead of using this notation, if I'm going to denote it like that, P of 2, तो ये दोनों एक ही है, notation same ही. Okay, if I'm presenting it P of X equals to 2, or I'm writing P of 2,
तो ये दोनों सेम ही, इसका मतलब यही है, आई एम डीलिंग विद x इक्वल्स टू 2. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैविंग वन ऑफ द रिलेशन p of 2 is equals to 9 times p of 4 plus 90 times p of 6. This is one of the relation I'm having. And what using this relation, what we are supposed to find, then find mean of x. That means इस distribution का mean identify करना है, as well as we are supposed to find the variance of x. अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि mean क्या है Poisson variate के लिए, and what is the variance for the Poisson variate. बताएंगे कोई मुझ आप में से कि what will be the mean for the Poisson variate? Poisson variate के लिए mean क्या होता है? That is lambda, is it? लैम्बडा इज अ मीन फॉर द पॉइजन वेरिएट. अब वेरिएंस क्या होता है पॉइजन वेरिएट के लिए? वेरिएंस क्या होता है? सर वो भी लैम्डा होता है, इज इट ना? अगर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो क्या होता है? अंडर रूट लैम्बडा, इज इट? सो ये सारी बातें हमको पता है, वी आर नोइंग, वी आर हैविंग ऑल दिस इन आवर अकाउंट. पहले बात कर लिए, तो चलिए जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम पहले तो ट्रेस करना चाहेंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ mean, what should be the value of lambda. Now as we are knowing that we are dealing with the Poisson variate, तो Poisson variate के लिए जो फॉर्मूला रहती है Poisson distribution की, वो क्या है? एक बार मैं लिस्ट आउट कर दूं. That is p of x equals to x is e power minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial. This is a probability mass function for the Poisson distribution, is it? अब इसका यूज करके मैं इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई कर रहा हूँ. देखिए, we are having this relation कि p of 2 is equals to 9 times p of 4 plus 90 times p of 6. यहाँ पे p x की जगह पे 2 रिप्लेस कर रहा हूँ. देखिए, then it will be e raised to minus lambda square divided by 2 factorial. What I had done, I had used this particular formula. यही फॉर्मूला का मैंने यूज किया हुआ है, और इसमें x की जगह पे 2 रिप्लेस किए फॉर दिस पर्टिकुलर. और यहाँ पे मैंने लिखा this equals to will remain as it is, this 9 will remain as it is. Now p of 4, तो मुझे x की जगह पे 4 लिखना है, e raised to minus lambda power 4 divide by 4 the factorial, then after plus 90 as it is, x की जगह पे 6 लिख रहा हूँ, e raised to minus lambda raised to 6 divide by 6 the factorial. Now we will go for the simplification. अब देखिए, हर किसी में e raised to e power minus lambda है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से. We are good with that. और lambda square, here we are having lambda square, यहाँ पे lambda raised to 4 है, यहाँ lambda raised to 6 है, तो इन दोनों में से I can take lambda square common. तो lambda square अगर निकाल दूँ दोनों तरफ से, तो ये होगा lambda square यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह पे पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 की जगह पे पावर 4 हो जाएगा, is it? And then if I go for the simplification, तो इस तरफ पे क्या बचेगा? 1/2 just, यहाँ पे 9 as it is है, lambda square divided by 4 factorial. What is 4 factorial? That is 24. 9 divided by lambda square divided by 24 plus lambda raised to 4, 90 as it is है, lambda raised to 4 divided by 6 factorial जो भी निकलेगा, that is 5 into 4, sorry 6 into 5 into 4 factorial. 4 factorial हमको होता है 24, तो 24 into 6, 24 into 30 सॉरी, तो ये हो जाएगा 3. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दूँ, 3 से अगर कैंसिल करूँ तो ये 3 होगा, ये 8 होगा, एंड देन 2 कैंसिल कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इज इट? एंड आफ्टर ऑल दिस सिंप्लीफिकेशन, जो भी एक टर्म मेरे पास बचेगा, दैट विल बी अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो रहेगा एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो क्या रहेगा? लेट मी शो यू द सेम स्टेप्स व्हिच आई हैड डन. और वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा लैम्बडा रेज़्ड टू 4. शायद आपको लास्ट स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, लेट मी राइट इट डाउन for you guys. That is lambda raised to 4 plus 3 lambda square minus 4 equals to 0. This will be one of the biquadratic equation we will be having after solving this. इसका सिंप्लीफिकेशन करके जो भी आ रहा है वो एक पावर 4 वाली पॉलिनोमियल है, एक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर 4 है. Then what we are supposed to do, what we are looking for, we are looking first of all we are looking for mean of x, mean of this Poisson variate. और हमको पता है mean क्या होता है? लैम्बडा होता है. That means we are trying to trace the value of lambda. तो
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा वाला एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरे पास लैम्डा की 4 अलग वैल्यूज आएगी। नाउ कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है कि इसको सॉल्व करना। वी मे टेक लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ले लीजिए। इसको एक अजम्पशन ले लेते हैं, एक्स 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 लेट मी टेक टी। लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर दूं तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 4 कैसे फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, जिसका एडिशन 3 हो, क्या होगा, t प्लस 4 t माइनस 3 सॉरी t माइनस 1 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0। इससे मुझे मिलेगा t इक्वल्स टू माइनस 4 और इससे मुझे मिलेगा t इक्वल्स टू प्लस 1। अब मैंने t क्या लिया था, लैम्डा स्क्वायर, सो यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दूँ तो लैम्डा स्क्वायर विल बी माइनस 4 और लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ रियल नंबर। इन दैट केस लैम्डा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 तो इमेजिनरी नंबर रहेगा, तो ये वी विल नॉट गोना कंसीडर दिस पर्टिकुलर केस। तो मतलब क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमको लेना है। लैम्डा स्क्वायर 1 है। इफ आ लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दैट मींस लैम्डा इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि माय लैम्डा इज ऑलवेज पॉजिटिव। Is it? That is the reason I will consider positive 1 from this only, because lambda can't be negative. So lambda will be 1. Now once I'm having lambda, then I will go for the variance as well as standard deviation। जो भी पूछा हुआ है वो हम कर सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें, अभी जो सॉल्व किया उसमें किसी को डाउट है, और वी आर गुड, ड्रॉप अ मैसेज ओवर द चैट बॉक्स। 10 बच्चे हैं, सारे बच्चे, आई नीड ऑल 10 replying on the chat box. विभूषा, ओम, मोहम्मद, मेघना, जय, ईशा, हितेश, बहुदीप, अर्पित, निधि। आर वी गुड विद दिस? कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान सा एक सिंप्लीफिकेशन हमने किया। गुड। सो लेट मी शो द प्रॉपर वे यू आर सपोज टू राइट डाउन। यस, सिंप्लीफाई करने से 1 और माइनस 4 निकल रहा है। सिंस लैम्डा इज पॉजिटिव तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 नहीं, माइनस 4 नहीं हो सकता, जैसे हमने अभी बात की। और लैम्डा स्क्वायर 1 कंसिडर कर रहा हूँ, पर अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो लैम्डा की वैल्यू प्लस और माइनस 1 दोनों होगी। बट एज वी नो दैट लैम्डा इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स मैं नेगेटिव 1 नहीं लूंगा, लैम्डा की वैल्यू प्लस 1 है। सो मीन 1 आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 1। और वेरिएंस भी क्या होगा, मीन और वेरिएंस दोनों एक ही है, लैम्डा ही है, तो मीन वेरिएंस की वैल्यू भी 1 होगी। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछा होता तो क्या होता, if one more question was there, the third one, एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता कि फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, तो क्या होता, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज नथिंग बट इट इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, और इस केस में वो भी 1 रहता क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1। तो इसका मीन भी 1 है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी 1 है, वेरिएंस भी 1 है, सब कुछ 1 है। ठीक है, दैट वाज एग्जांपल नंबर 4। आफ्टर दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस एग्जांपल 5, ये हमने बात कर ली है। सो मूविंग फर्दर, एक और क्वेश्चन लेते चलिए। नाउ होपफुली यू गाइस आर गुड विद द कंसेप्ट। कुछ एक रिकॉल ले ले छोटा सा इस क्वेश्चन पे जाने से पहले अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, मेरे पास 10-12 बच्चे हैं, दिखाइए, आप याद कीजिए पॉइजन कब एप्लीकेबल है। जो भी याद है बताइए, कोई बात नहीं, सही गलत जो भी, अगर गलत होगा तो मैं आई विल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, जो भी आपको याद हो, व्हेन पॉइजन इज एप्लीकेबल। पॉइजन इज लिमिटिंग केस ऑफ, सर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, हाँ बेटा तू बता। सर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, यस, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, उसको क्या बोलते हैं बलदीप, उसको थोड़ा करेक्ट कर ले बेटा। द नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी वेरी वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, इज इट, मानी कि n की वैल्यू काफी बड़ी होनी चाहिए। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बलदीप। देन The probability of success is very less. probability of success must be very very small। कौन बोला ये, विभूषा बोला। यस करेक्ट, probability of success मानी कि p की वैल्यू काफी कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, गुड, थैंक यू विभूषा। और कुछ याद है किसी को? ओम परीख ने डाला चैट बॉक्स में कि भाई बाइनोमियल, सॉरी, पॉइजन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, सही बात है तेरी बेटा।
कि हम बाइनोमियल वाले जो सिचुएशन है उसी के साथ डील कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ही है। हर बार जब भी पॉइजन से बात कर रहे हैं वो बाइनोमियल ही है, पर बाइनोमियल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, इज इट? उसमें n की वैल्यू काफी बड़ी है, p की वैल्यू काफी छोटी है, बाकी सब कुछ बाइनोमियल ही है। सो यस, इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देख, पॉइजन कब कब अप्लाई करना है? जब n की वैल्यू काफी बड़ी है, p की वैल्यू काफी छोटी है, और हमारे पास दो ही आउटकम है, इधर वी मे एसोसिएट वन ऑफ द आउटकम विद सक्सेस और अदर मस्ट बी फेलियर, इज इट? तो इसी केस में पॉइजन हो रहा है। अब देख, इस एग्जांपल में कहीं पे पॉइजन ऐसा लिखा नहीं होगा, दैट वी विल आइडेंटिफाई। क्यों मैं ये अभी बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में है तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई बाइनोमियल जाएगा या फिर पॉइजन जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। लुक, सपोज इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है अभी, सपोज अ बुक ऑफ 585 पेजेस, एक बुक है जिसमें 585 नंबर ऑफ पेजेस है, कंटेन 43 टाइपोग्राफिकल एरर, 43 टाइपो है उसमें एरर है, जिसमें टाइपिंग मिस्टेक है। कितनी एरर है? 585 पेजेस में से सिर्फ 43 एरर्स है। इफ दिस एरर्स आर randomly distributed through the book, और हो सकता है कि एक पेज में 2 एरर है, या तो फिर 5 पेज आप ले लो, एक भी एरर ना निकले। सो इट इज scattered randomly distributed, पता नहीं कौन से पेज में कितनी एरर है। Then what is the question? What is the probability that 10 pages selected randomly at random will be free from error? आप कोई 10 पेजेस उसमें से उठाओ और वो उसमें कोई एरर ही ना हो। We are looking for the probability of that. What will be the probability that randomly chosen 10 pages will be error free, errorless? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोलिए। यस, गुड। निधि को समझ में आ रहा है। एक तो है जिसको समझ में आ रहा है, और तो कोई नहीं बोल रहा है। मेघना आयुध है? हाँ, मेघना तो है। गुड। तो देख, अभी क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात पता चल रही है हमको कि भाई 10 पेजेस हमको सिलेक्ट करने हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी एरर फ्री। 10 पेज अगर मैं सिलेक्ट करूं तो वो एरर फ्री रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। So what we are looking for P of x equals to 10, like that. Is it like that? Yes. पर अब इसमें पॉइजन वेरिएट कैसे डिफाइन करूंगा मैं? x कैसे डिफाइन करूंगा? Then how I will decide कि भाई ये पॉइजन से जाएगा कि नहीं? Let me show you. Let P be the probability of error in a page, a single page. P is the probability that I'm having error in one of the page. Right now I'm dealing with a single page. So P उसकी probability है कि एक पेज में अगर एरर मिले तो सक्सेस है। Then अब उसकी probability क्या है? ये तो दी हुई है कि भाई आई एम हैविंग 43 errors in that whole contain, so that will be 53 divided by 585, वो जो भी निकला 0.0735। ठीक, अब we are investigating 10 pages, so n की वैल्यू 10 रहेगी। Now here P is very small. You can observe P is 0.07. It's very small number. And n is in compare of that, n is large. इसके comparison में n बड़ा है, इसके comparison में n बड़ा है। Then Poisson distribution is applicable. And what will be that? The value of lambda will be multiplication of both that. It will be 0.735. हाँ बोल बेटा। सर ये n लार्ज है या n मतलब p के कंपैरिजन में लार्ज है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हाँ, वेरी कर सकता है, एग्जैक्टली वेरी कर सकता है। तो सर मैं वो तुझे तो अभी फिर एक एग्जांपल बाइनोमियल भी दूं। लगा सकता है कोई। यहाँ पे बाइनोमियल भी हो सकता है। यस, क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है। यू कैन गो फॉर दैट। पर अभी थोड़ी देर में तुझे बताऊंगा कि यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल कर रहे हैं ना तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ओके, रुक जा, अभी बता दूं, थोड़ी देर के बाद शायद मैं भूल जाऊं। देख, अगर P ये है ना 43 divided by 585, then what will be your Q? Identify the Q. It will be 585 minus 43 divided by
585 इज इट ना? यही होगा ना तेरा Q? तो ये जो भी आएगा बहुत बड़ा आएगा, 5 minus 3 it will be 2, सर 5, 9.3 समथिंग कुछ आएगा, 0.9 आएगा? 0.9 842 divided by 585. हाँ, No, 842. not 842. 542 divided by 585. It will be 0 point something. Is it? तो So 0.92 आ रहा है. 0.92 जो भी आएगा. 0.92. हाँ, ये if this is 0.73 then this will be 0.921 like that. Yes अब sir. अगर तू पॉइजन के फॉर्मूला में वो डालेगा ना तो थोड़ा इश्यू होगा कैलकुलेशन करने में. पर इस क्वेश्चन में फॉर 10 पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी जो मैंने सेट किया है सिर्फ मैंने 10 ही पेजेस लिए हैं. आई जस्ट सिलेक्टेड 10 पेजेस रैंडमली. अगर इसको थोड़ा बढ़ा दूं 150 पेजेस तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. अभी एक एग्जांपल लेंगे हम अभी के अभी और तुझे बताएंगे कि भाई कब पॉइजन करना चाहिए कब बाइनोमियल करना चाहिए. एक सिचुएशन भी तेरे सामने रख दूं ना तो यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि कब बाइनोमियल चाहिए कब पॉइजन चाहिए. रुक जा पहले ये खत्म कर ले जल्दी से. अभी ये 10 को छोड़ दे. ये मैं बोल रहा हूँ 10 इज क्वाइट बिग नंबर इन कंपेयर ऑफ 10, इसलिए तुझे शायद कंफ्यूजन है. बट इफ यू एग्री विद मी कि यस इन कंपेयर ऑफ दिस 10 इज क्वाइट बिग तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी एज पर डिस्ट्रीब्यूशन इज इट लैम्बडा विल बी n into p. Yes. ये आएगा. एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर वी आर जस्ट लुकिंग फॉर p of x P of equals x to equals to 0. p of x equals to 5. yes So x zero. equals to हाँ 0 क्योंकि हम x को हमने एसोसिएट किया एरर से. इज इट? सो p of x equals to 0 ये निकलेगा 0.4759. उसी फॉर्मूला में हमने डाल दिया सारी वैल्यू कि कोई भी एरर नहीं चाहिए. सो वी आर डन विद दैट. बट देख अभी देख पॉइजन और बाइनोमियल को मैं तुझे डिस्ट्रिक्ट फर्क बता दूं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तेरे लिए. रुक जा लेट मी चूज माय पेन. गुड. अब एक सिचुएशन देख. लेट मी गो फॉर वन ऑफ द सिचुएशन. यस throwing a die. Okay, throwing a die is my experiment and दोनों केस में यही कर रहा हूँ throwing a die. तो जैसे सर 12th में बताया था कि बहुत जैसे स्मॉल केस होता है ना तो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं. अगर बड़े केस के लिए हम बाइनोमियल पे जाते हैं. बड़े केस के लिए बाइनोमियल नहीं. अब इसमें ऐसा होगा कि मतलब छोटा है ना जैसे तो बाइनोमियल नंबर ऑफ लेंगे. इवेंट जैसे बढ़ जाते हैं ना, हम्म, जैसे अगर थ्रोइंग 2 डाइस है तो हम हाँ. डायरेक्टली सैंपल स्पेस निकाल के कर सकते थे. तो जरूरत नहीं डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है. इज इट? हाँ, और वो बट थोड़ा सा बढ़ गया अभी. जैसे बोल दिया 5 डाइस तो 5 डाइस का हम वो नहीं लिख सकते. Yes, there you Sample are. space. There you are. Throwing a 5 dice, then you are having quite confusion in preparing your sample space. Sample space बनाना थोड़ा tedious होगा. तो Yes, तू sir. गया तूने हेल्प ली डिस्ट्रीब्यूशन की और Yes, वो sir, वो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट? अब उसमें भी मैं एक एक्सटेंशन दे रहा हूँ. देख throwing 5 dice for 100 times तो खत्म हो गया ना. अभी सैंपल स्पेस बनाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. इज इट? तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है तो सिंपल प्रोबेबिलिटी उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर तू बना दे कि थ्रोइंग 5 डाइस तो सैंपल स्पेस में प्रॉब्लम आ रहा है. सो वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बाइनोमियल फ्रॉम वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. और उस डिस्ट्रीब्यूशन में उस एक्सपेरिमेंट में भी अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ा दूं ना देन आई नीड अ पॉइजन. देख यही बताओ. रुक जा अभी तूने जो बोला ना अब उसी पे मैं बात करता हूँ. यहाँ पे मैं बात करूंगा बाइनोमियल की. लेट मी फिक्स द सिचुएशन फर्स्ट. चल एक डाई थ्रो कर रहे एंड गेटिंग 2 इज सक्सेस. ओके, गेटिंग 2 इज अ सक्सेस. इसको बोल रहे हैं अगर 2 आ रहा है तो सक्सेस है. यहाँ पे भी अगर 2 आ रहा है तो सक्सेस है और बाकी का कोई भी नंबर फेलियर. इज इट? तो यहाँ पे p क्या होगा बेटा? 1/6. 1 q क्या होगा? 5/6. करेक्ट. तो यहाँ पे भी p क्या होगा? 1/6 और q क्या होगा बेटा? 5/6. इज इट? अब यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूँ. ये एक्सपेरिमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर आई एम थ्रोइंग अ डाई फॉर 10 टाइम्स. 10 बार कर रहा हूँ. एंड हियर आई एम थ्रोइंग अ डाइस फॉर 6000 टाइम. I am repeating experiment for 10 times. I am repeating experiment for 6000 times. Now, what I am doing, I am trying to make you convince for कि बाइनोमियल कब है पॉइजन कब है. ये मैं तुझे डिफरेंस थोड़ा बता रहा हूँ. यही केस तू बाइनोमियल से भी कर सकता है. जो मैं पॉइजन वाली बात कर रहा हूँ ना कि भाई यहाँ पे तुझे पॉइजन करना चाहिए पर अगर तुझे नहीं करना है पॉइजन तो तू बाइनोमियल से भी कर सकता है. पर अगर तू बाइनोमियल से करना चाहेगा ना देन
the things will be that calculation will be tedious for you. क्यों? अभी बताऊं. चल, अब इस केस में मुझे चाहिए, मान ले कि प्रोबेबिलिटी दैट मैंने 10 बार किया और मुझे कम से कम 5 बार सक्सेस चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर p of x is greater than equals to 5. मुझे सक्सेस चाहिए 5 से ज्यादा बार. दैट मीन्स कि आई एम थ्रोइंग ए डाई, 10 बार कर रहा हूं, 2 जो आए तो सक्सेस है, और मुझे 2 जो है ना सक्सेस है वो 5 से ज्यादा बार चाहिए. तो क्या होगा? वी आर लुकिंग फॉर p of 5 प्लस p of 6 प्लस p of 7 और कहां तक जाऊंगा? p of 10 तक जाऊंगा. 10 तक. समझ में आ रही बात? और इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ncx p raised to x and q raised to n minus x. दिस इज द फॉर्मूला. n minus. तो कर सकते हैं. ये p of 5 करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा. p of 6 बहुत आसानी से, p of 7 भी हो जाएगा, p of 10 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर ऐसे ही करना है तो कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं. बहुत बड़ी काम, ये बहुत टीडियस काम नहीं है. वी कैन डू दैट. थोड़ा टाइम लगेगा पर कर सकेंगे. अब इसी केस में सेम सिचुएशन, आई नीड p of x is greater than equals to 5. तू बोल क्या होगा? सर इसमें तो 1 माइनस कर देंगे फिर. चल 1 माइनस कर देंगे. चल ठीक है, मुझे आगे जाने दे. I was expecting the same answer from you. Wait, let me erase this. अब 5 नहीं करना है, देख अजय, मुझे करना है p of x is cumulative भी नहीं लेता हूँ. चल बहुत आसान ले लेता हूँ. 3256 चाहिए. हो सकता है ना? एग्जैक्टली 3256 बार, 3256 बार मुझे सक्सेस चाहिए. हो सकता है ना? आई कैन ऑप्ट दिस फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि सिचुएशन सेम ही है. सर एग्जैक्टली के लिए तो निकाल सकते हैं ना. हाँ एग्जैक्टली. देख मैंने p of x equals to लिखा है, देख लिखा है ना. यस सर. तो सर इसमें तो फिर बाइनोमियल का फॉर्मूला लग सकता है. चल लगाते. n की वैल्यू बोल. 6000. 3256. कैलसी है तेरे पास? 3256. कैलसी है तेरे पास में? नो सर. p की वैल्यू 1/6 रेस 2 जो होगा वो दैट विल बी 3256 एंड 5/6 डिवाइड बाय 6000 माइनस 3256. इज इट? यही होगा ना? ले एक बार कैलसी ले. ये एक बस ये सॉल्व करके दिखा मुझे. 6000 c 3256 एक बार ट्राई कर, क्या आ रहा है बता मुझे. कैलसी नहीं है तो ढूंढ ले. और किसी बच्चे के पास कैलसी, यहाँ पे जो जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कोई एक बच्चा है जिसके पास साइंटिफिक कैलसी अभी है? मेरे पास है. चल मैं करके दिखाऊं, मैं कर लूं एक बार कि 6000 c कहाँ गया सी वाला कॉम्बिनेशन कहाँ गया? यस सी 3256. मेरा कैलसी मुझे बोल रहा है यार मैथ एरर. I'm using the same Kelsey. I'm using the same. Let me show. मैं शो भी कर सकता हूँ. रुक जा एक बार. मेरी एक स्क्रीन विजिबल है तुझे? देख कोई एक स्क्रीन तुझे विजिबल होगी अभी. लगा I'm in net or not. रुक जा. Let me on my cam. Yes. बैक कैमरा कैसे चालू होगा ये? रुक जा एक मिनट. सर इसका तो सब 0.00000 नहीं आएगा. किससे तूने किससे किया? मैंने ऑनलाइन किया. ऑनलाइन किया. देख क्या आ रहा है. ऑनलाइन तो कर सकता है, एग्जाम में तो ऑनलाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बता. नहीं कर पाएगा ना. तो इन दैट केस व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू? कैलसी. तो फिर इज इट ना? अरे यार मेरी पूरी स्क्रीन वो चली गई जो मैंने किया था. शिट वेट. यहाँ पे था. अब स्क्रीन शायद नहीं आएगी, पता नहीं आएगी. अरे यार वो निकल गया. What we were looking for, probability of x is equals to 3256, is it? और वो फॉर्मूला से अगर मैंने निकाला तो क्या आ रहा था? 6000 3256 p की जो भी वैल्यू थी 1/5 उसका कुछ पावर था 1/6 और 5/6 का कुछ पावर था. छोड़ दे. यहाँ आएगा 3256 और यहाँ पे आएगा 6000 माइनस समथिंग. 3256. हाँ वो छोड़ दे. बस एक ये देख, ये कॉम्बिनेशन भी सॉल्व नहीं होगा हमारे साइंटिफिक कैलसी से.
because this is a quite big number. ये बहुत ही बड़ा नंबर है. अगर मैं यहाँ पे ऐसा पूछ लूं कि p of x equals to x is greater than equals to 3 to 5 6, तो हमारा कैल्सी है ना वो कॉमा में चला जाएगा, क्योंकि that is out of his capacity. तो देख ये कॉम्बिनेशन बहुत आसान नहीं है. क्या है देख, तुझे अगर पता चले तो 6000 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3256 फैक्टोरियल इनटू 6000 माइनस 3256 फैक्टोरियल होगा ये. और ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा. 6000 फैक्टोरियल मान ली कि खत्म हो गई बात, बहुत हेल्पलेस हो जाएंगे. वी नीड ए सुपर कंप्यूटर टू सॉल्व दिस. एक तगड़ा सा कैल्सी चाहिए. ये हमारा 16 डिजिट वाला कैल्सी भी इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा आएगा. सो दैट इज अ प्रॉब्लम कि भाई अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स इज क्वाइट बिग, नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी बड़े हैं ना, तो बाइनोमियल वाला केस उससे कर तो सकते हैं हम. वी कैन डू दिस मैन्युअली कर सकते हैं. शायद शाम हो जाए, शाम या तो फिर कल का दिन भी आ जाए इसको सॉल्व करते करते, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते करते. पर हो सकता है मैन्युअली कर सकते हैं, पर इट इज नॉट कन्वीनियंट. Is it? It is not, literally it is not convenient. If it is not convenient, then we must change our formula. वो जो formula था NCX, P raised to X, Q raised to N minus X, उसमें से कुछ change करना चाहिए. वही तो हमने change किया. उसको इस formula को हमने modify कर दिया. उस formula क्या बना लिया हमने? E raised to minus lambda raised to X divide by X factorial. और इस नई formula को हमने क्या बोल के रखा है भाई कि तू कौन है? तू poison. ठीक है. तो this is nothing, this is literally ditto same as a binomial. पर इसको अप्लाई कब करना है? जबकि भाई number of trials is quite big. The reason is this. Look, this is the reason. ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है. वो कॉम्बिनेशन ही सॉल्व नहीं होगा. Even Kelsey will not help us. So that is the need of a poison distribution. यही सबसे बड़ी नीड है पोइजन के लिए. अब बताओ, और कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा. अर्पित बोल रहा है कैल्सी धोखेबाज निकला. क्या बोल रहा है अर्पित? ओके, आदित्य विल ज्वाइन इन 20 मिनट्स. प्रियंक फीस के लिए फीस पे करने कॉलेज. हाँ, प्रियंक का तो फोन आया था, सॉरी यार मैं भूल गया. प्रियंक फीस पे करने कॉलेज गया है, वो मुझे पूछ के गया. कैल्सी धोखेबाज निकला. ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ या ना? आर वी गुड विद दिस थिंग? Are we good with this thing? बताओ, जितने भी लोग हैं बताओ प्लीज. ज्यादा लोग आज नहीं है तो हम नॉर्मल स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, बिकॉज नॉर्मल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर. एंड व्हाट वी विल बी डूइंग, व्हाट विल बी डू राइट नाउ, हम वो एक्सरसाइज करेंगे पॉइजन वाली. ठीक है. अगर पॉइजन के लिए अभी कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए. अगर नहीं डाउट है तो जल्दी से समझाते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ. आज हम करेंगे भरपूर प्रैक्टिस. हर कोई बच्चा जो है आज, हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा और हर एक बच्चे का मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा. देखेंगे कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. देखिए, आपके फाइनल एग्जाम में एक बाइनोमियल का क्वेश्चन रहेगा, एक पॉइजन का रहेगा ही रहेगा, पक्का रहेगा, बिकॉज बोथ दिस आर क्वाइट यूजफुल. इफ यू आर डीलिंग विद द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो दो ही है जो काफी फेमस है. उसके अलावा भी एक और हम पढ़ेंगे अभी डिस्क्रीट के लिए, पर दैट विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. बट जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है ना वो बाइनोमियल और पॉइजन है. Is it? So let's go for the practice session. Hopefully कोई डाउट है तो बता दीजिए. अभी नहीं है तो मुझे प्रैक्टिस सेशन शेयर करने दीजिए. रुक जाइए, let me switch my screen and for that let me choose poison exercise. कहाँ गई? Yes, यहाँ पे होगी ये टॉपिक एक्सरसाइज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 2. मेघना, मैंने एक्सरसाइज पॉइजन की एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर की है, शायद किए कि नहीं किए? यस सर. की है. सर कर दी. सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया? नहीं सर. अच्छी बात है, बच गया. Look, once again my screen will be visible to all of you within a just within a second. Yes, now it is visible to all of you. This is exercise, topic exercise 2B. This is purely based on the Poisson distribution for your class only, 3TP1. Now these are some of the basic questions related to Poisson distribution, and what we'll be doing, the same exercise I had shared in your WhatsApp group. एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ ताकि अगर किसी को वो नहीं मिला है तो किसी ने डाउनलोड नहीं किया है
तो फिर से कर ले एक बार. आई एम जस्ट रीसेंडिंग दैट पर्टिकुलर टू सी बैच. यस, अभी कर दिया देखो. सो kindly download the exercise 2B from WhatsApp group. Beyond that, let's discuss the questions quickly and then I will providing you the time और फिर आप सॉल्यूशन मुझे बताएंगे. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए. द फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन सारे वेरिएट. क्वेश्चन करना है? नहीं, 2-3 करेंगे, चलना देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन वेरिएट. If the poison variate if the variance of poison variate is 3, that means lambda दिया हुआ है मैंने, lambda is 3, then find the probability. ये तीनों probability काफी आसान होगी. lambda की वैल्यू है आपके पास, बात खत्म हो गई, आप फॉर्मूला से सब कुछ निकाल सकते हैं. सेकंड में, if the poison distribution एक रिलेशन देके रखा हुआ, देखे मैंने 3/2 p of x equals to 1 equals to p of x equals to 3, एक रिलेशन है, इसको कंपेयर करके आपको lambda मिलेगा. once you are having lambda तो ये तीनों probability बहुत आसानी से निकल जाएगी, 1, 2 और 3. ये तीनों निकल जाता है. यस, तो ये तीनों निकलना बहुत आसान होगा वंस यू आर हैविंग लैम्बडा. एंड देन थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, फिर से एक रिलेशन है. इट इज सिमिलर टू द सेकंड और थर्ड वाला सिमिलर है. यहाँ पे सिर्फ रिलेशन मैंने चेंज किया हुआ है और लैम्बडा फाइंड करना है और p of x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है. तो पहले 3 क्वेश्चन काफी सिंपल है और लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख. यस 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 देख, मैं बात कर रहा था भवदीप से. भवदीप यहाँ पे आ तो बेटा. Yes, sir. देख फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर मेरे लिए एक बार लाउडली. Six coins are tossed 6,400 times using 6 the coins are tossed. Yes. Using the poison distribution, what is the What is approximate? the approximate probability of getting 6 head 10 times? 6 hats. 6 कॉइन है मेरे हाथ में. 6 कॉइन है मेरे हाथ में. मैं 6 कॉइन टॉस कर रहा हूं. एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 6,400 बार. अब तू सोच, क्या इसका सैंपल स्पेस बन पाएगा? नहीं बनेगा. अगर 6 कॉइन टॉस कर रहे तो भी हम सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे बिकॉज इट विल बी 2:6, काफी बड़ा होगा. इज इट? तो 6 कॉइन्स हम टॉस कर रहे, वो भी 6,400 बार. तो तू देख सकता है नंबर ऑफ टाइम्स आई एम रिपीटिंग द ट्रायल इज क्वाइट बिग. एन की वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी? 6400. बहुत बड़ी है. एंड प्रोबेबिलिटी दैट मैं हर एक कॉइन में 666 आए ना, हर एक कॉइन में हेड आए, दैट इज माय सक्सेस. तो मुझे 6 हेड चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, इट विल बी 1/6 into 1/6, sorry 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, that means 1/2^6. p की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी. अब ये दोनों तो कंपेयर कर ले और तू बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई अगर इसमें मैं बाइनोमियल करना चाहूँ ना तो बहुत बड़ा लोचा होगा. बिकॉज आई एम जस्ट लुकिंग फॉर x इक्वल्स टू 10. 10 बार चाहिए. तो बाइनोमियल की फॉर्मूला में अगर तू डालेगा तो क्या होगा? 6400 C10. 6,400 C10 है. वो भी सॉल्व कर तू कैलसी से. बहुत बड़ा नंबर. लेट मी शो. 6400 C10 अगर मैं निकालूं, मेरा कैलसी बोल रहा है इट इज 3.1548 रेस टू 10 रेस टू 31. रेस टू 10 रेस टू 31 कितना बड़ा नंबर है. वो मैं लिख नहीं पाऊंगा, सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा. सो दैट इज द रीजन वी नीड मॉडिफिकेशन इन बाइनोमियल. सो यही तो वजह है, यही तो रीजन है कि हमने पॉइजन पढ़ा हुआ है. ठीक है. सो 4-5 बहुत आसानी है क्वेश्चन. आप एक बार समझ लेना, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं तो सब कुछ निकल जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लगानी होगी. सो अभी क्या कर रहे हैं हम? 3 इक्वेशन कर रहे हैं. चलिए एक क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 4 and 5. 2, 4, 5 ये 3 ही करने हैं अभी. हर एक बच्चा करेगा क्वेश्चन 2, 4, 5. आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स टाइम. मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ. मैं अपना माइक भी म्यूट नहीं कर रहा हूँ. कहीं पे भी डाउट है बताइए. एंड यू गाइज विल मेंटेन दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस टॉपिक एक्सरसाइज ओवर योर लैब बुक. हाँ, हर कोई बंदा एक लैब बुक मेंटेन कर रहा है. ये क्वेश्चन लैब बुक में ही चाहिए. अभी 3 कर रहे हैं, बाकी के जो 3 बचे आपको होमवर्क में करने हैं एट योर टाइम. And once we are good with all this question, I will be sharing the solution even. Solution भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, WhatsApp ग्रुप में करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा. तो चलिए आप टाइम लीजिए. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5. 2, 4, 5. ओके, समझ में आया सभी को? एक बार एक्नॉलेज कर लीजिए चैट बॉक्स में. Are you getting? कितने क्वेश्चन करने हैं मैं लिख दूं यहाँ पे भी. एग्जाम्पल 2,
then after 4 and 5 ये 3 ही करने हैं. जल्दी से एक्नॉलेज कीजिए आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, and then I will giving you the time, appropriate time. ईशा, निधि, विभूषा, मेघना, अर्पित, हर कोई जो भी यहाँ पे है. हाँ चलिए, now your time starts now. मोहम्मद, good. Yes मेघना, बोल, कुछ बोलना चाहती है बेटा? No, sir. Okay. So अर्पित, भवदीप, ईशा, जय, मेघना, मोहम्मद, निधि, ओम, विभूषा, यश. यश तू कहाँ था? कब से वेट कर रहा था? यश, नहीं सर, ये वो थोड़ा आधा घंटा लेट आया था. हमने 12:30 को एंटर किया था वो थोड़ा. तो हमने 12:30 को ही स्टार्ट किया. तू था हमारे साथ, हमने 2-3 क्वेश्चन जो डिस्कस किए. हाँ, तो वो डिस्कशन चल रही थी तब मैं आ गया था वो अवदीप के साथ. ठीक है, अच्छी बात है. चल, तो यहाँ पे अभी तुझे करना है. बायनोमियल और पॉइजन. अच्छी बात है. चल, क्वेश्चन 2, 4 और 5 करने हैं. ठीक है, हर कोई बच्चा ये करेगा. आई एम गिविंग यू सुटेबल टाइम. जब हो जाए अनम्यूट योरसेल्फ, टॉक टू मी. मैं यहीं पे हूँ, कहीं मैं नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, क्विकली योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस सर. ओके.